नमो लोये सौहरिहन्ताणं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौभागिर्यानं नमो लोये सौज्यायानं नमो लोये सौत्रिकावती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मंगलं भगवान् यो मंगलं गौतमोनि मंगलं कुंकुमधारी विजेन्द्रमोसु मंगलं नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निदाता। કળશ અમૃત ભગવાન અમૃતચંદ્રાચાર્ય રચિત કળશ અમૃતનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં મોક્ષ અધિકારમાં છઠ્ઠો કળશ એટલે સળંગ કળશ 185 નો સ્વાધ્યાય ચાલે છે. આ કળશ કુંકુંદાચાર્ય ભગવાનની ગાથા 300 પછીથી અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને રચ્યો છે. અને અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને એમાં ખૂબ ભાવ ભરી દીધા છે. કેમ કહ્યું કે જેમના ચિત્તનું ચરિત્ર ઉદાર ઉચ્ચ ઉજ્જવળ છે એવા મોક્ષાર્થીઓ જે ખરેખર મોક્ષના અભિલાષી છે એવા મોક્ષાર્થીઓ જેમને સમ્યક તો પ્રગટ કર્યું છે અને પોતાના સ્વરૂપમાંથી આવતા આનંદની અનુભૂતિ થઈ છે એવા એ મોક્ષાર્થીઓ આ સિદ્ધાંતને સેવન કરો કે હું તો શુદ્ધ ચૈતન્યમય એક પરમ જ્યોતિ જ સદાય છું. હું તો શુદ્ધ ચૈતન્યમય એક પરમ જ્યોતિ જ સદાય છું અને એ સિવાય હું બીજું કાંઈ નથી. એટલે પછી તો એમ કહી દીધું કે આ જે ભિન્ન લક્ષણવાળા વિવિધ પ્રકારના ભાવો મારી પર્યાયમાં જે પ્રગટ થઈ રહ્યા છે તે હું નથી, એ હું નહીં. હું તો શુદ્ધ ચૈતન્યમય એક પરમ જ્યોતિ જ સદાય છું. ને બીજા બધા ભાવો તો મારાથી જુદા છે. હું સ્વ અને એ બધા મને પર દ્રવ્ય છે. પછી આ કળશ ઉપર રાજમલજીએ ટીકાની અંદર પણ એ જ ભાવને વ્યક્ત કર્યો અને એ આપણે વાંચનમાં લીધું છે. એટલે વિશેષ વિસ્તાર એનો નથી લેતા, પણ થોડો ભાગ આજે લઈએ છીએ જે ગુરુદેવ જેના ઉપર વિસ્તાર કરવાના છે. અહીંયા એ વાત કરે છે કે એવા સ્વરૂપનો નિરંતર અનુભવ કરો. એ વાત જે કળશમાં આવી તો તે શુદ્ધ છે એવા સ્વરૂપનો નિરંતર અનુભવ કરો. કોણ? મોક્ષાર્થી જીવો. અને પછી કહે છે કે મોક્ષાર્થી જીવ કેવા છે અને મોક્ષાર્થીની વ્યાખ્યા ગુરુદેવે કરી, બહુ સરસ રીતે કરી. જેને હવે સંસાર શરીર ભોગ જે છે એના વિકલ્પો રહ્યા નથી, એટલે કે સંસાર શરીર ભોગથી રહિત છે. મનનો અભિપ્રાય જેમનો એવો છે અને એવા એ મોક્ષાર્થી જીવ છે. અને એ પરમાર્થ એ પ્રવર્તી રહ્યા છે. તો કહે છે કે કેવો છે તે પરમાર્થ? પરમાર્થ કેવો છે? તો કે સ્વ સંવેદન પ્રત્યક્ષ છું જે હું જીવ દ્રવ્ય તે પરમાર્થ છે. તે શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વરૂપ પ્રકાશ સર્વકાળ નિશ્ચયથી છું, તે હું છું. એમ આખી વાત લીધી છે. જે પોતાને સંવેદનમાં આવે છે એવું પોતે પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જ્ઞાન સ્વરૂપ એવું પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરવા વાળો પોતે જીવ દ્રવ્ય છે અને સર્વકાળ એમ જ છે, નિશ્ચયથી એમ જ છે. અને પછી એક વિશેષ છે કરીને વાત મૂકી કે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ સાથે બીજા બધા જે ભાવ છે, રાગાદી ભાવ, એ અશુદ્ધ ભાવ, એ મળતા નથી, એ અણમળતા છે. પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ સાથે આ રાગાદી ભાવ, અશુદ્ધ ભાવ, પરના લક્ષ્ય થતા ભાવ, આ નોકર્મ એવું શરીર, શુભાશુભ ભાવ અને જળ કર્મ જે સુખ દુઃખ ના નિમિત્ત કારણો થાય છે, એ બધા આદિ નાના પ્રકારના એ અશુદ્ધ પર્યાયો, તે બધા જીવ દ્રવ્ય સ્વરૂપ નથી. એટલે મારું જે શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એવા એ નથી. એ કેવા છે? અશુદ્ધ છે. એ અશુદ્ધ છે, મારા શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ સાથે મળતા નથી. કેમ મળતા નથી? એ બધા કે છે કે નિજ સ્વરૂપને અનુભવતા જેટલા જ આ રાગાદી અશુદ્ધ વિભાવ પર્યાયો છે તે મને પરદ્રવ્ય રૂપ છે. મને મારું જે સ્વદ્રવ્ય છે એમાં તો આનંદ શાંતિ સુખનો અનુભવ થાય છે.
એમાં આમાંનું કાંઈ નથી, એટલે બધા એ મારાથી જુદા છે, એ મને પરદ્રવ્યરૂપ છે, કેમ કે શુદ્ધ ચૈતન્ય લક્ષણ સાથે મળતા નથી, તેથી એ સમસ્ત વિભાવ પરિણામ હેય છે અને મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ જે છે તે જ મને ઉપાદેય છે. તો ફરીથી પણ આપણે આ વાંચનમાં લીધું છે અને પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે એનો કેટલો ભાગ આપણે કર્યો છે. હવે આજે આગળ લઈએ છીએ કળશ પ્રવચન ભાગ 5મો, એના પાના નંબર 543 ઉપર અહીંયા પ્રવચન નંબર 204 પહેલેથી શરૂ કરી અને પૂજ્ય ગુરુદેવ સમજાવે છે. कलश टीका 185 फिर लेते हैं। अर्थ है ना, अर्थ मोक्षार्थी भी अयम सिद्धांत शीघ्रता, ये शब्द पढ़ा है। क्या अर्थ है उसका? मोक्षार्थी भी, जिसको आत्मा आनंद स्वरूप है, अंदर आत्मा है, वो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। इंद्रिय का विषय में जो आनंद मानते हैं ये तो दुख है, ये कहीं सुख नहीं। सुख अंतर आत्मा में अनंत, कल कहा था नहीं, वो शकरकंद का दृष्टांत दिया था ना, शकरकंद, शकरकंद समझते हैं? शकरकंद ना ऊपर लाल छाल, ईश्वाय सारा शकरकंद, शकर नाम साकर नहीं मिठास का पिंड वो मारे शकर नाम पड़ा है, शकरकंद, साकर की मिठास का पिंड, ऊपर की लाल छाल सिवाय अलावा। ऐसे हाँ भगवान आत्मा सूक्ष्म बात है। भगवान अंदर में शुभ शुभ राग जो होता है, दया दान व्रत भक्ति पूजा का शुभ भाव, और हिंसा जूठन चोरी विषय भोग की वासना का पाप भाव, दो ही लाल साल जैसी पर चीज है। अपनी चीज अंदर और लाल छाल से जिन भिन्न कंधा शकरकंद है, ऐसे भगवान आत्मा ये शुभ शुभ भाव मलिन भाव है, उससे भिन्न अतीन्द्रिय आनंद का कंद आत्मा है। हाँ हाँ, क्या वैसे है भान મળે नजर करे तो कौन दिखाई नहीं जहाँ है ત્યાં नजर करे तो दिखने में आते हैं, दिखने बाहर दिखते हैं, अपनी दशा में बाहर दिखते हैं। हाँ, तो देखने वाला किसा है, वो कैसे है और कौन है, इसकी तो खबर नहीं दुनिया की दापन किया सब, पर वो अंदर में चीज क्या है उसकी तो खबर लिया नहीं कभी। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। अपनी चीज अंदर अतीन्द्रिय आनंद का कंद ज्ञान मूर्ति है। यहाँ पहला शब्द का अर्थ करना है मोक्षार्थी, ये पहला शब्द का अर्थ करना है। क्या? जिसको अंतर में अतीन्द्रिय आनंद है, ये पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद की जिसको अभिलाषा है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप जो आत्मा में है, उसका पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद प्राप्ति करने क्या जिसका अभिप्राय है, अभिप्राय समझते हैं, आशय, उसको यहाँ मुमुक्षु कहते हैं, उसको योगी कहते हैं। अर्थात अपनी चीज जो अतीन्द्रिय आनंद मय अंदर में वस्तु है न, पदार्थ है, तत्व है, अस्थि है, मौजूद चीज है, तो मौजूद में अंतर तो पुण्य पाप का जो विकल्प उठते, शरीर तो जड़ माटी धूड़ है, और अंदर में दया दान व्रत भक्ति और काम क्रोध कमाना रलना,
ये सब भाव मलिन भाव है। ये मलिन भाव के पीछे अंदर अतीन्द्रिय आनंद कंद प्रभु आत्मा, उसका जिसको प्रयोजन है मोक्षार्थी, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करने का जिसका अभिप्राय है उसको मोक्षार्थी कहते हैं। दूसरी भाषा में उसको मुमुक्षु कहते हैं, तीसरी भाषा में उसको योगी कहते हैं। योगी नाम योग बार ना बाबा बाबा योगी योगी नहीं। अंतर आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप, उसमें योग योग नाम जोड़ान होना, अपनी वर्तमान दशा को त्रिकाली ध्रुव अतीन्द्रिय ज्ञान ने आनंद में एकाग्र होना, जोड़ना, वर्तमान दशा को अंदर में मिलाना, उसका नाम योगी, मुमुक्षु, मोक्षार्थी, जिसका अभिप्राय में पूर्ण आनंद की प्राप्ति का आशय है। शर्त बहुत शर्त बहुत। अब मोक्षार्थी की एक व्याख्या है, मोक्ष नाम दुख से रहित होना और अतीन्द्रिय आनंद पड़ा है उससे पूर्ण सहित होना, उसका नाम मोक्ष। और राग द्वेष पुण्य पाप भाव होता है, ये दुख है। डॉक्टर कमाना दवा करना विकल्प ये सब दुख है, हम कहते हैं। ये राग है। यहाँ तो सत्य ही सत्य रहेगा। इंजेक्शन दूसरा है आत्मा का। यहाँ भगवान आत्मा आए भाई वस्तु क्या भग नाम, भगवान शब्द पड़ा है ना, तो उसका अर्थ भग नाम लक्ष्मी होती है। कैसी लक्ष्मी? अंतर में आनंद ने ज्ञान जिसमें पड़ा है, ये लक्ष्मी, ये लक्ष्मीवान आत्मा है। ये शरीरवान नहीं, पुण्य पाप का विकल्प जो राग उठता है, दया दान काम करो जो भी, उसका नहीं, उसका स्वरूप में नहीं। ऐसा आनंद का ये बात तो जीणिया श्लोक जीना है। मोक्षार्थी कहा न तो संकिति ले आए यहाँ नहीं। जिसको बंधन का दुख से रहित होना है, जैसा आत्मा का स्वरूप अंदर अबंध स्वरूप मुक्त स्वरूप है, उसकी वर्तमान दिशा में प्राप्ति करना है, उसको यहाँ मोक्षार्थी कहने में आता है, उसको मुमुक्षु कहने में आता है। पूर्ण आनंद की अभिलाष करने वाला को मुमुक्षु कहते हैं। उसको अंतर में चैतन्य मूर्ति में पुण्य पाप का राग से भिन्न होकर अंतर में एकाग्र होना है, तो उसको यहाँ योगी कहते हैं। बाकी आ जगत का योगी फूगी बदा भोगी है। समझ में आया? ये मोक्षार्थी का तीन अर्थ है, मुमुक्षु, योगी, पूर्ण आनंद का जिन्हें प्राप्त करने का आशय है, उसका नाम मोक्षार्थी है। शेष समझते हैं? भाषा हिंदी भाषा है, भाव सूक्ष्म है। मोक्षार्थी अयम सिद्धांत, अयम सिद्धांत स्वरूप, सिद्धांत नाम स्वरूप, वस्तु का स्वरूप। वस्तु जो है आत्मा, वस्तु है, उसमें वशीला ज्ञान आनंद आदि शक्तियां है। तो ये अयम वस्तु, अयम सिद्धांत, वस्तु का स्वरूप, उसका नाम सिद्धांत।
सिद्ध हुआ ऐसी चीज, वस्तु अंदर आनंद कन प्रभु, ये वस्तु का स्वरूप को सिद्धांत कहते हैं। अयम सिद्धांत मोक्षार्थी को सेव्यताम। आज शब्द थोड़ा है पर आप अध्यात्म है। समझ में आया? जिसको आत्मा का आनंद की प्राप्ति करना है और जिसको पुण्य पाप राग द्वेष आदि विकल्प वृत्तियां उठती हैं, ये दुख है। ये दुख से मुक्त होने का जिसका अभिप्राय है और जिसका अभिप्राय में पूर्णानंद की प्राप्ति का आशय है और जिसका अभिप्राय अंतर स्वरूप में जोड़ांत कर दिया है, उसको यहाँ मोक्षार्थी कहते हैं। जोड़न समझते? जोड़ना। राग बीच में जो जुड़ा है ना, ये अंतर में जुड़ना। जीनी बात से प्रभु। ये मोक्षार्थी भी अयम सिद्धांत वस्तु का स्वरूप सिद्धता। सिद्धांत એટલે सिद्ध हुआ वस्तु का स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद खंड प्रभु, उसको शिवता, उसको शिवना करना, अनुभव करना। अनादि काल से राग नाम विकल्प जो वृत्तियां उठती है शुभाशुभ, उसकी सेवना है। ये दुख की सेवना है, दुखी है। अब प्राणी प्रोपति अव्योपति कहने में आता है, ये सब प्राणी दुखी है। क्योंकि आत्मा का आनंद से विपरीत पर की प्रीति का राग करते हैं और पर में ठीक करते हैं और प्रतिकूलता में द्वेष करते हैं। ये राग द्वेष दुख है। लक्ष्मी ऊपर लग जाते हैं, ये दुख है। भगवान आत्मा ऊपर लग छोड़कर लक्ष्मी ऊपर लग जाना, ये राग दुख है। अपना आनंद का, भोग का, अनुभव का लक्ष्य छोड़कर स्त्री का भोग में सुख है, ये दुख है। बड़ा मकान हो, करोड़ों, 2 करोड़ 5 करोड़ का, वास्तु करते हैं ना, वास्तु समझते हैं, क्या कहते हैं, घर प्रवेश, बड़ा धन बड़ा करते हैं। बड़ा तुम्हारे जो डॉक्टर ने मोटा ने बोलावे, मोटा महोत्सव करे। ये में ये राग है, ये भी दुख है। 50 करोड़ का मकान भी बनाया, नहीं उसमें बनाया, 5 करोड़ का खर्च किया, कार्यकर्ताओं को बुलाया, मोटा से बहुत आ तो आनंद आया, थोड़े नहीं आनंद सुन लिया। राग है, दुख है, व्याकुलता है। आणाकुल आनंद स्वरूप भगवान उससे आई गया, उससे विपट लक्षण, प्रकट लक्षण पीछे आई गया। मोक्षार्थी अयम सिद्धांत सेवतम। मोक्षार्थी भी सकल कर्म का क्षय होने पर, पूर्ण विकार का नाश होने पर, कर्म शब्द पुण्य ने पाप विकारी भाव, उसका संग प्रकार, इस सब का नाश होने पर, शब्द तो बहुत सूक्ष्म होता है अतीन्द्रिय सुख। ये राग का भाव जो असंख्य प्रकार का है, शुभ ने अशुभ, जिसको शुभ कर्म कहते हैं ना, शुभ डॉक्टर कहते हैं कर्म, शुभ कर्म, ये शुभ कर्म ही राग है। व्रत ने, दया ने, दान ने, अनुकंपा ने, परनी सेवा ने, सब राग है। ये राग है, ये दुख है। आई डॉक्टर है, सर्जन डॉक्टर है, वो आया नहीं, चंदू भाई आया नहीं, उसकी बहन को ठीक नहीं क्यों आया, कलकत्ता डॉक्टर। अतीन्द्रिय सुख उसे उपाधि रूप अनुभवते हैं।
जिसको अतीन्द्रिय आनंद भगवान आत्मा में पड़ा है, वो तरफ के रुचि ने पुरुषार्थ से अपना अभिप्राय उसमें जोड़ने से आत्मा का आनंद का अनुभव करते हैं। ये अतीन्द्रिय आनंद को उपाधि नाम स्वीकार सत्कार करते हैं और राग का अस्वीकार ने असत्कार करते हैं। समझ में आया? ये मोक्षार्थी है, ये अनुभव है ऐसा जो जीव एम लिया। मोक्षार्थी की व्याख्या जा किया, वस्तु का स्वरूप कोई पण चीज हो तो उसका स्वभाव तो होता है न, शक्ति होती है, सत्व होता है, तत्व होता है न, तत्व नाम भाव। कोई पण चीज हो उसका भाव होता है। तो वस्तु है भाववान है और उसका भाव होता है। तो आत्मा भाववान है और उसका भाव अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद भाव है। ये भाव का जिसका सेवन है, सम्यक दृष्टि को धर्मी को वर्तमान में इसका आनंद का अनुभव का सेवन है, उसने अतीन्द्रिय आनंद का उपादेय माना है। उपादेय नाम आदरणीय स्वीकार किया है और राग आदि भाव का अस्वीकार किया है। उसका नाम धर्मी कहने में आता है। अरे सब क्यों समझ में आया? लॉजिक जुना है। ये उसके द्वारा अयम सिद्धांत એટલે वस्तु है, वस्तु का स्वरूप भगवान आत्मा का स्वरूप अतीन्द्रिय को आनंद स्वरूप, ये सिद्धांत है। ये सिद्ध हुआ वस्तु है, उसके जिसको अनुभव है उसको यहाँ धर्मी ने मोक्षार्थी कहने में आता है। आशा है सादी, भाव है सूक्ष्म। दुनिया तो जानते हैं ना हमको, दुनिया तो सारी दुनिया ही खबर है ना। ये तो हाँ, तो 88 वर्ष हुआ शरीर को। 88 2 तुम्हारे 48 उधर 88। भगवान अंदर पड़ा है प्रभु। उसकी जिसको अभिप्राय मोक्ष का अभिप्राय है, पूर्ण आनंद की प्राप्ति और पूर्ण दुख का अभाव की जिसका अभिप्राय है, उसने वस्तु का स्वरूप से वो वस्तु भगवान आत्मा। जैसे आप परमाणु माटी दूर है तो उसमें भी रंग गंध स्पर्श शक्ति है। देखो रंग है ना, रजकण है, रजकण परमाणु माटी। एक नई चीज है, टुकड़ा करते 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 आखिर का टुकड़ा रहते हैं, उसको परमाणु कहते हैं। परम नाम छेल्ला ना छेल्ले, आखिर में आखिर छोटा। टुकड़ा करते करते छेल्ला आखिर रहते उसको परमाणु कहते हैं। परमाणु भी रंग गंध रस पर भरा है, उसमें शक्ति गुण वर्ण गंध रस पर भरा है। तो ये वस्तु में वस्तु का स्वभाव पड़ा है। ऐसे भगवान आत्मा में आनंद ने अतीन्द्रिय ज्ञान और ईश्वरता ने प्रभुता स्वच्छता आदि शक्तियां अंदर भरी है। इसका जिसको आस्वाद लिया है, इसको यहाँ मोक्षार्थी वस्तु का स्वरूप से वो एम कहने में आता है। धीमे धीमे समझना भाई, वहां तो जाकी दुनिया से जुदी जुदी है। दुनिया से, सारी दुनिया से बात फेरे है। उगमना आत्मना फेरे, उगमना आत्मना समझे, पूर्व पश्चिम। कहते हैं ये वस्तु का स्वरूप सेवन करो, कैसे निरंतर अनुभव करो।
धंधा बंदा राग है। यहाँ तो राग को छोड़कर एकदम आत्मा का काम करना है, उसको आत्मा आनंद स्वरूप भगवान अंदर है। ये राग से भिन्न है, भेद है, पृथक है, आगे लेगा। ये राग आदि विकल्प जो उठते हैं दया दान का, रोलने का, कमाने का, इससे आत्मा पृथक है और आत्मा से राग पृथक है और आत्मा से राग विपरीत है और आत्मा से राग अज्ञान है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो पुण्य दया दान का राग उठते हैं, काम क्रोध आदि का, ये अज्ञान है। ये अज्ञान ने ज्ञान स्वरूप में भिन्न चीज अंदर है, पृथक है, विपरीत है, भिन्न है, अज्ञान है। આવી વાત છે ભગવાન। ધર્મ કોઈ સાધારણ ચીજ અત્યારે આ મકર સંક્રાંત કરી ગઈ ને તો લોકો બોલે હરિજન મકર संक्रांत पुण्य पर्वणी के अनाज दो तुम्हारे पुण्य होगा। कल मकर संक्रांत कल गई तो हरिजन के निकले बाहर, पुण्य पर्वणी मकर संक्रांत, कोई दान दो, कोई अनाज दो, कोई ऐसा दो, तुम्हारे पुण्य होगा। ये तो कदाच हो तो राग की मंदता स्वभाव हो, पर है तो ये दुख। आत्मा तो उससे भिन्न चीज है अंदर। ये भगवान अतीन्द्रिय आनंद का दौड़ है, पिंड है। शकरकंद कहा न, ऐसा शकरकंद आत्मा है। शक्कर नाम सागर की मिठास का पिंड है, ऐसे आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की मिठास का पिंड है। समझ में आया? ये वस्तु स्वरूप, सिद्धांत का अर्थ वस्तु स्वरूप, सेवना आ उसका कायम अनुभव करो तो तेरे मुक्ति होगी, नहीं तो मुक्ति होगी नहीं। समझ में आया? अभिप्राय में तो ऐसा रखना कि आत्मा आनंद स्वरूप उसकी सेवना करना वही रास्ता धर्म है, क्यों कहते हैं। देखो मोक्षार्थी जीव कैसे हैं? मोक्षार्थी जीव उदात चित चरिते, 3 शब्द पढ़ा है। उदात नाम रहित, किससे? संसार शरीर भोग से रहित है। उदासीन अधिक हो गया है। संसार नाम पुण्य पाप का भाव है, शरीर है और राग का भोग है, चाहे तो शुभ और शुभ राग का भोग, विषय का भोग, स्त्री आदि का भोग। उनको स्त्री का भोग नहीं करते ही, उत्तर लक्ष्य करते हैं, राग का भोग करते हैं। इस शरीर तो मांसाहार का है, जड़ मधूड़ है, तो उसका कोई भोग आत्मा को होता है नहीं। वो तरम रस करके ठीक है, मजा पड़ते, ऐसा भाव उत्पन्न करते हैं। राग, ये राग का भोग है। ये भोग को छोड़ देंगे दृष्टि में से। शब्द कैसा है? संसार शरीर भोग से, उदात का अर्थ है संसार शरीर भोग से। उदात नो अर्थ तो खरेखर तो पर से पृथक, ऐसी उदात चीज है पर से। तो पर क्या कि संसार शरीर ने राग का भोग, ये उदात, उससे भिन्न रहित चित चरिते, जिसका मन का अभिप्राय, जिनका ऐसा क्या कहते हैं, जिसका मन का आत्मा का अभिप्राय, आशय, श्रद्धा, जिसका आत्मा का अभिप्राय है कि मैं तो मेरी वस्तु की चीज को सेवन करूं, ऐसा जीव को यहाँ मोक्षार्थी और धर्मी कहने में आता है। बीच में राग आता है, जब स्थिर न हो सके राग आता है, पर ये राग को छोड़ने लायक मानते हैं, आदरने लायक मानते हैं, छोड़ने समझते ना। आता तो है राग पूर्ण न हो, तरफ परमात्मा दिशा
अपने छोड़ने लायक नहीं। जब विष्ठा होती है ना, विष्ठा तो होती है पर रखने लायक है। मिशुब खाया, मिशुब समझे, मिसूर पाक तो खाया या पौनों से 4 सेर घी पाएगा लोट में एक आटा चना का वेतन 1 सेर और 4 सेर घी का उसको मिसूर कहते हैं। और 1 सेर गेहूं का आटा और 4 सेर घी उसको शक्कर पारा कहते हैं। सब हमको देखे ना, सब हम लोग खाए, सबके खबर है। इस मिसू खाया हो, उसकी विष्ठा हो रखने के, आप तो मिसू खाया तो विष्ठा बड़ी अच्छी है। रोटी की विष्ठा खराब है, रोटी रोटीदार तो मिसू अंदर खाया, 4 से घी की पाया कि ऐसा ऐसा तुमको दिया था थोड़ा, कैसे मिसू था ये। वो मेरे बेटे को खिलाया था आंख में, मैं तो भी खाता नहीं कुछ, मैं तो चार फूल का खाता हूँ रोटी, इसलिए कुछ खाता नहीं। तो ये मिसू खाया उसकी विष्ठा हो, ये रखने लायक है। ऐसे अंतर में पुण्य ने पाप की भाव जय समान है, विष्ठा न किया धनी कड़क लागे। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय अनाकुल सत्वी शक्ति का पिंड प्रभु, अमृत का सागर है आत्मा, उससे विपरीत पुण्य पाप का भाव, ये विपरीत दुख रूप जहर है। जहर का अनुभव अनादि से अज्ञानी करते हैं, पर वो जहर से भिन्न भगवान अंदर आत्मन आनंद कंद है, उसका अनुभव दृष्टि अभिप्राय कभी करते नहीं। तो जिसका चरित्र का अभिप्राय है, जिसका चित्त का चरित्र, आत्मा का अभिप्राय मन न, चित्त अर्थ मन लेवा, चित्त એટલે ज्ञान, जिसका ज्ञान का आत्मा का अभिप्राय है, जिस ऐसे है ये शरीर भोगने संसार से अंदर में से विरक्त होकर स्वरूप आनंद में रक्त होकर अनुभव करो, तेरे आनंद होगा, तेरे संसार से मुक्ति होगी, तेरे बंधन से अबंध भाव प्रकट होगा। समझ में आया? अभिप्राय નું જોર થયું ભાઈ, જેના જ્ઞાનમાં અભિપ્રાય चित्त का चरित्र, अंदर जी ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, उसका अभिप्राय ऐसा है, चारित्र रमणता कि जो पूर्ण स्वरूप मेरी चीज है उसका अनुभव करना, ये इसका अभिप्राय है। समझ में आया? कल चला था, अब फेर लिया थोड़ा, ये बात कहीं आवे नहीं पची બીજી વાર વાંચે બીજું આવે, ત્રીજી વાર વાંચે ત્રીજી વાર, તો ભંડાર ભરે આયા અંદર તો। भगवान तुम चैतन नेत्र है ने, आ नेत्र तो जड़ है, धूड़ है, अंदर चैतन प्रकाश का नेत्र है, चैतन स्वरूप, ये चैतन का प्रकाश का नूर का पूर भरा है, उसका जिसके ज्ञान में अपना स्वभाव में अभिप्राय अपना स्वरूप की सेवना करना का है, ये मोक्षार्थी है। अपना अनुभव करो, पर का अनुभव छोड़ो। धंधा फंदा अंदर मुझ में आता है पाप। डॉक्टर का धंधा अंदर पाप है। सर्जन है, सर्जन सेना सर्जन है, ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन में भाव तो है ना, पैसा मिलेगा था, पाप है।
कितना डॉक्टर से ऐसा हो, अस्पताल बड़ी होती है ना राजकोट में, तो 2 महीना 3 महीना ऑनरी करे, ऑनरी मफत। हेतु तो ये है कि यहाँ तो बराबर प्रसिद्ध हो जाए, पीछे अपनी दुकान चले भाई चले चले चलो बोलू 2-4 महीना ऑनरी करे, डॉक्टर मफत जाते हैं। पर हेतु क्या, 4-6 महीने अस्पताल में काम कर प्रसिद्ध हो जाए, प्रसिद्ध हो तो अपनी भिन्न दुकान चले जाए, चले ये सब पाप है। यहाँ तो पाप की तो बात एक और दूर हो, पर दया दान भक्ति व्रत तप का, पूजा का, ईश्वर स्वरूप भगवान का स्मरण, ये सब राग है। क्योंकि भगवान तो ज्ञान में आनंद है, उसमें वृत्ति उठती है, विकल्प उठते हैं तो राग है। तो भगवान आत्मा वस्तु का स्वरूप जो है, जिसका अभिप्राय उदात है, इसका चरित्र अभिप्राय अंदर में रमना, ये अभिप्राय है। सूक्ष्म बात है भगवान पर। साधारण बात तो है दया पावन, व्रत करो, अप्पा करो, यात्रा करो, गिरनार निर्माण, ये सब राग है, ये कोई धर्म फर्म नहीं है। धर्म तो अंदर में पुण्य पाप का राग से भिन्न करके अपना स्वरूप का अनुभव सेवन करना, उसका नाम परमात्मा धर्म कहते हैं। मानो न मानो मार्ग तो है, आज करो कल करो पीछे करो, पर आखिरी संसार का छुटकारा होगा, बंधन से मुक्ति होगी, ये बिना बंधन से मुक्ति होगी नहीं है। समझ में आया? क्या है कि जिसका अभिप्राय, ज्ञान का अभिप्राय ऐसा है कि मैं तो मेरी चीज का सेवन करूं, मेरी चीज है वो ज्ञान ने आनंद तिंद्री से भरा है, उसका मैं अनुभव करूं, ये जिसका अभिप्राय है तो उसका अनुभव करो। पहला उसका निर्णय तो करे कि आज चीज ऐसी है। समझ में आया? अरे कभी किया नहीं, अनंत का हुआ, साधु भी अनंत बैर हुआ, मुनि व्रत धारे अनंत बैर गृह को उपजायो, छोटाला में आता है, छोटाला है ना, मुनि व्रत धारे अनंत बैर गृह को उपजायो, पर आत्मज्ञान बिन ले सुख न पायो। पंच महाव्रत पाया, 28 मूल गुण लिया, दया दान किया, व्रत किया, तो ये तो सब राग की क्रिया है, उसमें सुख नहीं, वो तो दुख है। आखिरी बात है भाई, दुनिया से भिन्न परम सत्य तो है। समझ में आया? ये अभिप्राय जिसका ऐसा है, ये सेवन करो। कैसा है परमार्थ? अब प्रभु वस्तु कैसी है, जन सेवन करो, क्या ना सेवताम, सिद्धांत, सिद्धांत वस्तु, वस्तु स्वरूप कैसी है, अंतरात्मा। अहम शुद्ध चिन्मयम ज्योति सदैव अस्मि। अहम स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, अहम है, इस स्व अपने से वेदन संवेदन, ज्ञान ने आनंद का अपने से वेदन होना, ये अहम वो प्रत्यक्ष है। अहम आत्मा, उसका आनंद और ज्ञान का वेदन करना वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का अर्थ जिसमें कोई मन में राग की अपेक्षा नहीं, ऐसी अंदर चीज है, ये चीज का अनुभव करना वो प्रत्यक्ष है। अरे आखिरी बातों मार्ग तो એવું છે ભાઈ,
દુનિયાએ હોંગું કરી નાખ્યું બધું. આમ વ્રત પાળન ભક્તિ કરો આમ થઈ બાપુ એ તો જિંદગી ચાલી જશે. ભાવ મળ્યો મનુષ્ય ભાવ વ્યર્થ ચાલ્યો જશે. मनुष्यति मनुष्य का अर्थ ये है मनुष्यति ज्ञायते इति मनुष्य. मनुष्य का अर्थ है ज्ञायते इति ज्ञायक स्वरूप जो है उसको ज्ञान करे वो मनुष्य कहने में आता है. ये ज्ञायक का ज्ञान करे बिना पर का ज्ञान करे उसको तो पशु कहते हैं. पशु क्यों कहते हैं? पश्यति बद्धति इति पशु. पशु की व्याख्या है संस्कृत. पशु पश्यति बद्धति इति पशु. अपना स्वरूप की दृष्टि का अभिप्राय नहीं और राग ने द्वेष का सेवन करते हैं. ये बद्धति ये आवरण से बंधन में पड़ते हैं. ये पशु है बद्धति. पशु बद्धति पश्यति बद्धति पास में ये विकार में बंधन में आ जाता है. ये पशु कहने में आता है. आम अब्जोपति करोड़ोपति हो पर अंदर में आत्मा का भान नहीं, राग ने पुण्य पाप का सेवन करते हैं और भगवान आत्मा रह जाते हैं अंदर में अनुभव करने के. पशु कहते हैं. पशु का पश्यति बद्धति इति पशु. आवरण से बंध हो जाता है ना, आत्मा का भान नहीं है, उसको पशु कहते हैं. मनुष्य स्वरूपेण मृगाचरन्ति. मनुष्य ना रूप में मृग जैसा हरण. हरण कहते हैं ना, मृगला. ये मृग के नाभि में कस्तूरी. मृग के नाभि में कस्तूरी उसकी कीमत मृग को नहीं. अने उसकी गंध जाने बाहर में से आती हो तो बाहर से सोते हैं. ऐमा मनुष्य होकर अंतर में आनंद है, अंदर पड़ा है. ये नाभि में जब कस्तूरी पड़ी है अंदर में अतीन्द्रिय आनंद पड़ा है. ये जाने बाहर से आनंद मिले, स्त्री में से, आबरू में से, कीर्ति में से, पैसा में से. ये पशु तो मृगाचरन्ति, मृग जैसा है. बात आई से भाई डॉक्टर दुनिया थी दुनिया. ये कहते हैं कि शुद्ध चिन्मय ज्योति में तो हूँ, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष. मैं तो स्वसंवेदन, स्वना अपना आनंद ने ज्ञान का वेदन अनुभव प्रत्यक्ष पर की अपेक्षा बिना ऐसा मैं आत्मा हूँ. समझ में आया? सूक्ष्म बात है. भगवान खबर तो है ना हमको, सूक्ष्म तो है. लोक में कैसे चलती है सब तो सबको दिखाए. सारा हिंदुस्तान 10,000 मील 3 बार फिरा है. 10,000 मील मोटर है ने पी शू कहवाय पीमोस मोटर है. एक है रविवार बाहर निकलते हैं थोड़ा, वो बेटी बगड़ते है ना, निकलेगा थोड़ा बाहर, थोड़ा जाते हैं बेटी बगड़े थे. मोटी मोटर है 50,000 की. इतना वर्ष पहले पड़ी है सर, बाहर निकले काम आवे भाई कितनी बड़ी है. तो हिंदुस्तान में 3 बार फिरे. बहुत देखा, यात्रा देखा, मानसा देखा, लाखों मानसा. प्रभु महाराज ऐसा दूसरी चीज है. अंतर में देखना, देखने को देखने वाले को देखना, देखने वाला पर को देखते हैं. ये छोड़कर देखने वाले को अंतर देखना. मैं कौन हूँ?
वो श्रीमद राजचंद्र हुआ है, सुना है डॉक्टर? श्रीमद राजचंद्र हुआ है, श्रीमद राजचंद्र ने हुआ है, जिसको जाति ज्ञान था, पूर्व का ज्ञान था, छोटी उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में। वो 33 वर्ष में देश उठ गया, 33 तो 3 देश उठ गया। बहुत अजब गजब शक्ति थी। तो 16 वर्ष में कहते थे, हूँ कौन छू क्या थी थयो शू स्वरूप से मारू खू। 16 वर्ष में, शरीर के 16 वर्ष में। आत्मा को अनादि अनंत है, ये तो अविनाश है, उसका तो नाश है। 16 वर्ष में क्या है मैं, और है खरा स्वरूप, यथार्थ स्वरूप क्या है, ये यथार्थ स्वरूप जाने बिना, उसका अनुभव करे बिना 84 लाख का अवतार छूटेगा नहीं प्रभु। गमे ते क्रियाकांड करे, व्रत पाले, उपवास करे, भक्ति करे, करोड़ों रुपया का मंदिर चलावे, सब राग है, कोई धर्म नहीं। समझ में आया? यहाँ तो ये कहते हैं, मैं तो संवेदन प्रत्यक्ष हूँ, कोई दूसरी चीज में बनाऊं कि उसमें करूं तो उससे मेरे आत्मा को लाभ हो, ऐसा मैं हूं नहीं। है अंदर स्व संवेदन प्रत्यक्ष है, ऐसा मैं जीव द्रव्य, ऐसा मैं जीव चीज हूं। शुद्ध चिन्मय ज्योति, शुद्ध ज्ञानमय ज्योति, ज्ञान जल ज्योति चैतन्य मूर्ति, जहाँ प्रकाश की मूर्ति अग्नि की ज्योति है, ऐसे में चिन्मय ज्ञान ज्योति चैतन्य हूं अंदर। ध्रुव अनादि अनंत वस्तु में चिन्मय नाम ज्ञानमय ज्योति हूं। ये मेरा धाम है, ये मेरा स्थान है, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरी सर्वस्व चीज यहाँ है। चिन्मय ज्योति, ज्ञानमय ज्योति में सर्वस्व हूं। अरे આવું છે બાપુ, શું થાય? દુનિયામાં તો બધું બહારમાં કરે, સાધુ થઈ જાઓ, દીક્ષા લઈ જાઓ, ठीक भान नंबर आत्मा क्या, साधु हुआ तो क्या हुआ। समझ में आया? अपनी चीज का अनुभव नहीं, ज्ञान बिना साधु हुआ तो क्या हुआ, अनंत में हुआ। यहाँ ये कहते हैं स्व संवेदन प्रत्यक्ष होना। मैं तो चिन्ह ज्ञान, चिन्ह એટલે જ્ઞાન, ચિત્તો ન તો થાય છે। चिन्ह ज्योति એટલે चित्त ज्योति, चित्त ज्योति એટલે ज्ञान ज्योति। मैं तो ज्ञान का प्रकाश का पूर्ण नूर हूँ, ज्ञान का प्रकाश का समझ का नूर तेज पूंज हूँ, ये मैं हूँ। है चिन्मय शुद्ध ज्ञान स्वरूप प्रकाश, सर्वकाल सदा काल, एव नाम निश्चय से अस्मि हूँ, अस्मि हूँ। सर्वकाल में तो चिन्मय ज्योति हूँ। ऐसी दृष्टि करके अंतर में रमना, अनुभव करना वही पुराण आनंद प्राप्ति का उपाय है। बाकी सब व्यर्थ है। नीचे से हूँ, है न? ત્યાં સુધી आया था कल ત્યાં સુધી आया था, दोपहर को फेर लिया हमारे चंदू भाई के फरीन लोग के। हराया तू ये विविधा भावाते हम नास्ती। एक खास विशेष है कि विविधा भावा शुद्ध चैतन्य स्वरूप से मैं शुद्ध पवित्र चिन्मय ज्योति से अण मिलते, मेरा चैतन्य स्वभाव से मिलान नहीं होता, एक नहीं होता। मेरी जात से अण मिलते भिन्न चीज है क्या? राग आदि अशुद्ध भाव,
चाहे तो शुभ राग दया दान का हो कि चाहे तो पाप का राग हो, पर ये राग तो अपना शुद्ध ज्ञानमय मूर्ति से अनमिलते भाव है, भिन्न चीज है। समझ में आया? ऐसा अंदर में भेद ज्ञान करना, उसका नाम धर्म ने अनुभव है। आऊं लाऊं 1 કલાક સાંભળવું કઠું પડે, ઝીણી વાતો બધી। મારે તો એવો બાપુ છે ભાઈ, એ બોટાદમાં એક હતા ભાઈ રૂસમજી પાછળ, મકાન છે ને કોનું મરસું કે ભૂલી ગયા, મસરામાં મકાનના ઉપરી હતા, એ વ્યાખ્યામાં આપતા ક્યાંય રૂસમજી હતા બોટાદમાં। આવતા ઘણા માણસો અહીંયા તો એક 65 वर्ष तो दीक्षा लिया हुआ है, 60 और 5 दुकान छोड़ा, बहुत बहुत सारा देखा है सब। आ चीज तो बहुत महंगी है भैया, सामने में मिलती नहीं। अरे पीछे समझे तो कहाँ, यहाँ तो प्रभु ऐसे कहते हैं, प्रभु तेरे चैतन्य स्वभाव जो आनंद है उससे अन्न मिलता, जैसे गेहूं में कांकरा होता है, कांकरा कहते हैं गेहूं बोला जाता है ऐसा है। कोई पूछे तो क्यों बहन क्या करते हैं कि गेहूं वीणते हैं, एम कहते हैं गेहूं वीणते हैं, कांकरा वीणते हैं, कांकरा निकलते और बोले गेहूं क्या बहन करते हैं कि गेहूं क्यों कहते हैं कि मैं चोखा नहीं दाल नहीं वीणतू, ये बताने तो, नहीं तो वीणते तो कांकरा कंकर वीणते हैं, निकाल देते। ऐसे आत्मा में पुण्य ने पाप का भाव कंकर है। समझ में आया? आत्मा का अनुभव करना तो उसका अर्थ है कि पुण्य पाप का भाव दृष्टि में से, आश्रय में से छोड़ना। बहु का माखू बाबा प्रभु तारी बलियारी से भाई। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। આ કળશ ઉપર બીજી ગુરુદેવે ઘણો વિસ્તાર કર્યો છે, શેષ ભાગ આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું।